Okay, today we will do chapter 11, human eye. Okay, we are starting this chapter now. Chapter is the human eye and colorful world. Why we add the colorful world with the human eye? Can you tell us? What is the reason? Sir, because eye enables us to see the colorful world around us. Yes, because eye enables us to see the colors basically. Other things, so we can feel or we can identify with the help of the other sense organs also. We are having total 5 sense organs. Okay? So we can identify the particular object and tell the name of the object with other sense organs, but color cannot be sensed by the other organs. So this is the difference between the eye and the other sense organ. This is the only eye which will tell us what is this color. Okay. So the chapter is eye, and we will start like this. What is eye basically? The human eye जो है, it is the one of the most sensitive because delicate part है. Because it is most of the part is made by the muscles, jellies, not bones are there. ठीक है, sensitive, valuable and significant sense organ. Eye is a sense organ. It is a one sense organ out of the total 5 sense organ of our body. Of sight means visibility के लिए काम करता है. Which enables us to see the objects and colors around us. Okay? It is like a camera. हम लोग डेली यूज करते हैं मोबाइल के अंदर वैसे भी. To take the picture. So it is like a camera. कैमरे में अंदर लेंस होता है, तो इसके अंदर भी लेंस होता है. That's why we compared it with the camera. It is like a camera having a lens system and forming an inverted and real image on the light sensitive screen retina. Why we are saying the light sensitive screen? Because our retina जो है it is very light sensitive. When light rays falls on it, it generates the signal. Electrical signal which went to the brain with the help of the optical nerves, and brain interpret that things. ठीक है, and tell us कि this is what color, this is what object. So light sensitive screen we told like retina को light sensitive screen. Inside the eye. The eye has nearly spherical shape. हम देखते हैं कि हमारी जो eye है लगभग spherical shape है. ठीक है. The eyeball has a diameter of about 2.3 centimeter, nearly 1 inch. So this is about the eye. अगर definition आती है लिखने के लिए 1 मार्क्स में, तो it is quite sufficient. अगर आपके पास क्वेश्चन आता है like that कि draw the label diagram of the eye and define 4-5 parts, या फिर उसके नाम दे देता है. So आप फ्री हैंड स्केच बनाएंगे. डोंट वेस्ट द टाइम कि आधा घंटा केवल स्केच बनाने में लगा दिया. यू चेक द मार्क्स से कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, से 2 मार्क्स 3 मार्क्स, उसी हिसाब से आप बना लें. और जिन पार्ट्स को आप डिफाइन करना चाह रहे हैं या जिन पार्ट्स की डेफिनेशन क्वेश्चन में पूछ ली गई है ना, पर्टिकुलरली आस्क है, वो पार्ट तो 100% लेवल कर दें. उसके अलावा अगर कुछ पार्ट और कर सकते हैं, दैट इज एडेड एडवांटेजेस. बट वट एवर द पार्ट ही विल आस्क टू एक्सप्लेन, उनको पक्का डिफाइन कर दे, लेबल कर दे डायग्राम के अंदर. ठीक है. इट इज नॉट लाइक दैट कि जैसी बुक में बनी है, जैसे एक्चुअल में आई है ऐसी बनानी है. यू हैव टू सी विच पार्ट इज वेयर बेसिकली. सो आपने बेसिकली क्या, लेंस हो गया. लेंस के बाहर की तरफ आपने ये दिखा दिया, यहाँ से क्या दिखाया हमने, कॉर्निया दिखा दिया, बीच में पीपल्स दिखा दिया, आइरिस दिखा दिया, मोटा मोटा पार्ट दिखा दिया बस. ठीक है. विट्रस ह्यूमर है, एक्वस ह्यूमर है, आईलेड है, सिलरी मसल्स है, रेटिना, मैकुलर ल्यूटर एंड ऑप्टिक नर्व, ब्लाइंड स्पॉट, मेन पार्ट आप दिखा दें. ठीक है. लेट मी गो फॉर द कंपोनेंट डेफिनेशन. स्ट्रक्चर ऑफ द आई. Component and structure of the eye. First is the sclera. It is the outer part of the eye which protects the eye. It is hard, opaque and white in color. It is made of white fibrous tissues, and choroid is also attached with the eye. ठीक है, to the sclera and grey black membranes. ठीक है. So basically जो बाहर का पार्ट है आई का, वो हम sclera बोलते हैं उसको, जो हमारी आई को प्रोटेक्ट करता है. ठीक है. Then cornea. What is cornea? If you see, this is the bulging part of the eye, जो हमारा आई के अंदर का बाहर से हमें सब कुछ चमक रहा है जिसके ऊपर से, वो पार्ट हमारा आई कॉर्निया हो गया. इट इज अ ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन. ट्रांसपेरेंट है, स्फेरिकल शेप में है और प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है, मतलब प्रोटेक्ट करती है बेसिकली हमारे आई को. कवरिंग द फ्रंट आई. द फ्रंट पोर्शन ऑफ द आई इज मोर शार्पली कर्व्ड. बाहर का पार्ट जो है थोड़ा कर्व शेप में आता है. ठीक है.
and is covered by a cornea which is visible from the outside, यानी कि cornea में बाहर से दिखाई दे जाता है. ठीक है, that we will write about the cornea. Iris is a dark muscular colored diaphragm. ठीक है, ये muscular diaphragm है that controls the size of the pupil. This is the iris basically here, and this portion is known as the pupil. जो इसके बीच में होल सा है, iris के बीच का स्पेस इज pupil, जो लेंस के और इसके अपने कॉर्निया के बीच में iris है. ठीक है, so iris is a dark muscular colored diaphragm that controls the size of the pupil. Its position is between the cornea and the lens. This is iris, cornea and lens के बीच में इसकी पोजीशन प्लेस कर दी गई है. Then pupil क्या होता है? It is a small hole in the iris. The pupil regulates and controls the amount of light entering into the eye. So these are the iris. ये pupils हो गया, ये basically hole है. These iris regulates the light entering into the eyes, and that light enters through the pupil. ठीक है. Eye lens very important part है eye का. The eye lens is composed of fibrous jelly like material. मतलब इसके अंदर कोई बोन सा टाइप का कुछ नहीं है, ये फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल है, क्रिस्टलाइन टाइप है बिल्कुल. जो अभी आजकल हम आई सर्जरी भी कराते हैं तो उसमें भी अलग अलग टाइप के लेंस आ रहे हैं, तो वो भी क्रिस्टलाइन टाइप ही आता है. मतलब क्रिस्टलाइन का मतलब है जेली, फ्लेक्सिबल होता है. लेंस है नॉट लाइक अ ग्लास का लेंस, जैसे हमने लाइट के चैप्टर में पढ़ा या लेबोरेटरी में देखेंगे. दिस इज अ लेंस इन द फॉर्म ऑफ द जेली. ठीक, क्रिस्टलाइन बिकॉज ट्रांसपेरेंट है और फ्लेक्सिबल है. So the eye lens is composed of a fibrous jelly-like material which is hard in the middle. बीच का पार्ट इसका थोड़ा सा मिडल हार्ड होता है and gradually becomes soft towards the edge. जैसे जैसे हम एज की तरफ बढ़ते हैं ये थोड़ा सॉफ्ट होता चला जाता है. ठीक है. This crystalline lens provides the finer adjustment of the focal length required to form the image of objects placed at the different distances on the retina. आई लेंस का काम क्या होता है? इस लेंस का काम क्या होता है? It will provide a finer adjustment of the focal length so that the image can be found at the retina and clearly visible to the person. So the crystalline lens provides a finer adjustment of the focal length required to form the image of objects placed at different distances on the retina. This is a plano-convex lens. हमने लाइट के चैप्टर में टाइप ऑफ लेंस पढ़े थे. प्लानो कन्वेक्स पढ़ा था. कन्वेक्स का मतलब क्या होता है? हैविंग द कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी. कन्वर्जिंग का मतलब जो बाहर से रेज आएंगे उनको कहीं ना कहीं कन्वर्ज करेगा, और दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अवर आई, बिकॉज बाहर से आने वाली लाइट रेज को कन्वर्ज करके जहां वो कन्वर्जेस हो रही होंगी, दैट पॉइंट विल बी अवर ऑब्जेक्ट पॉइंट, इमेज पॉइंट, वहीं पर हमारी इमेज बनेगी. सो दिस लेंस इज द प्लेनो कन्वेक्स लेंस. फ्रंट साइड इज स्लाइटली फ्लैट एंड अदर साइड इनसाइड जो पार्ट है दैट इज कर्व. ठीक है. सो दिस इज अ प्लेनो कन्वेक्स लेंस हैविंग द फ्लैट सरफेस एंड द अदर कर्व सरफेस. क्या होता है कि जब हमारी लेंस इसके ऊपर आई रेज पड़ती है तो सिलेरी मसल्स जो हमारे यहाँ पे हैं वो उसको रिलैक्स या कॉन्ट्रैक्ट करती हैं. जैसे जैसे रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है. कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ऐसे हो गया, रिलैक्स का मतलब फैल गया. तो इसका जो कर्वेचर है, जो इसकी थिकनेस है लेंस की, चेंज होती रहती है. वो किसकी पर्पस किसकी वजह से होती है और कौन उसको हेल्प करता है चेंज करने में? आइरिस. तो सॉरी, सिलेरी मसल्स. ठीक है. कम टू द सिलेरी मसल्स. दीज मसल्स होल्ड द लेंस इन पोजीशन. ये बिल्कुल इसका जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आइरिस के साथ ही लगा हुआ और ये रेटिना के साथ लगा हुआ बीच का जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड सिलेरी मसल्स. यानी कि मसल्स ने इस लेंस को होल्ड करके रखा हुआ है. ये लेंस हो गया, ये मसल्स हो गई. ठीक है. ये सिलेरी मसल्स हो गई, ये इसको होल्ड कर किया लेंस को, और ये इसको रिलैक्स करने में मतलब रिलैक्स करने का मतलब लूज करना, फैला देना, और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब इसको सपोर्ट देना में हेल्प करती है. ठीक है. These muscles hold the lens in position. These muscles contract करती हैं. कब? When we look at the closer object. जब हमें नजदीक का देखना होता है तो we need कि this lens की जो इसका जो है थोड़ा क्लोज हो जाए. ठीक है. हाँ, कहाँ थे हम लोग? हाँ, these muscles contract when we look at the closer objects and increase the curvature of the lens so that closer objects seen clearly. इसका फंक्शन जो है प्रॉपर, जब हम
बाद में वर्किंग पढ़ेंगे तब समझेंगे। अभी तो ये है कि सिलेरी मसल्स इसको क्या करती हैं, जब क्लोजर ऑब्जेक्ट देखना है तो कॉन्ट्रैक्ट कर देती हैं। इसका जो कर्वेचर है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। कर्वेचर का मतलब ये पार्ट इंक्रीज हो जाता है। डोंट मिक्स विद द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, कर्वेचर यहाँ पे इसकी थिकनेस से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये पार्ट थोड़ा ऐसे बल्ज आउट हो जाएगा और ठीक है। सो क्या होगा, increase the curvature of the lens so that closer object seen clearly. Similarly, these muscles relax when we look at the distant object. जब हम दूर का ऑब्जेक्ट देखते हैं तो ये थोड़ा फैलती हैं, तो ये क्या होता है, इसका कर्वेचर क्लोज हो जाता है, कम हो जाता है, थोड़ा सा डिक्रीज होता है। Decrease the curvature of the lens so that distant objects seen clearly. Thus, ciliary muscles modified the curvature of the lens according to the object and helps to visualize the object clearly. Other part we will do in the next slide. ठीक है। So basic बताना यही है कि ठीक है, this year this has been deleted from the syllabus in the final exam, but we should continue our study like it is in the our exam. कोई पता नहीं है कि कब सिचुएशन चेंज हो जाए और कब बोल दें कि ठीक है फुल सिलेबस रीड करो, ठीक है। सो वी विल गो एज पर द सिलेबस। नेक्स्ट पार्ट इसके जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। एनी डाउट यहाँ पे? नो सर। ओके, नाउ यू राइट इट एंड देन वी विल गो फर्दर।